Good morning, Yashika. Welcome to the mains review session for HJS copies. In this particular session, we will be reviewing your HJS mains copies, which we have received through RTI, and let's see what all you have to improve so that in the next mains examination you can get good marks, and what all shortcomings were there in this particular examinations in your mains copies. So I'm just sharing Yes, your sir. copies on the screen. Yes, here it goes. So, Yashika, this was the mains copy. Let's start with Yes, the civil law paper one. So, in the civil law paper, we have reviewed a copy in detail and got to know, like in the first question, there were 18 marks. All the questions were out of 40 markers. Okay. So, 40 markers, 18 mark, 14 mark, 12, 14, and 0. First of all, this not attempted one. You must have seen in any of the mains examination, whenever you leave any of the questions unattempted, you get 0. But even if you, because it's a 40 marker question, we cannot leave any question unattempted, because the moment you left any question attempted, you are out of the race, because वहां पर आपके 40 marks इफेक्ट हो रहे हैं. अगर किसी क्वेश्चन का आपको एक पोर्शन नहीं आता, it makes sense. But if you are not able to get majority of the portion a complete question, so it will make a huge difference. yes, sir. Okay, just a second. Participants are joining. All right. So never in your mains examination leave the entire question to be unattempted. ठीक है, whatever you know, क्योंकि उसमें तीन parts होते हैं. Like this was the mains paper which you have got in the examination. So this was the mains paper. So each and every question is a complete 2 to 3 सब क्वेश्चंस. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसका सेकंड पार्ट नहीं आ रहा, थर्ड पार्ट अटेम्प्ट कीजिए, बट नेवर लीव द एंटायर क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड. ठीक है, नाउ लेट्स Yes, sir. प्रोसीड विद द अदर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. Let's review question number 1. So first see what was the question and what is the answer which you have written here. So let's go through the question. The question was, X being owner of 10 acres of land entered into an agreement for sale of same with Y while giving description of specific khasra numbers. Earnest money was paid through by Y through bank transaction. However, subsequently, X refused to get the sale executed and registered. Y sends a legal notice to X. X replies that agreement is unenforceable because the description of land mentioned in the agreement pertains to 9 acres only. Decide the remedies available to Y and if the description in the agreement is over 9 acres of land. तो यहाँ पर दो पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन है. पहले आपको फैक्चुअल एस्पेक्ट पे डील करना है, एंड सेकंड आपको ये भी बताना है कि क्या क्या रेमेडीज वाई के पास अवेलेबल है इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, तो टू एस्पेक्ट्स. Every time whenever you read the question, always see how many aspects you have to make sure कि आपके आंसर्स में होने चाहिए, because each and every, like in this second question, you have to deal with these 3 to 4 aspects. So each and every question, it is very much important. Now let's come to your answer. So you have started with mentioning the facts of the case, mentioning that the case X owner of 10 acres of land entered into agreement to sell of the land, earnest money and all. Yeah. Second point, before starting with the evaluation of the answer, यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर में यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पर एंड कर रहे हो. ठीक है, हमेशा इसको एक लाइन मेंटेन करो. ठीक है, Yes, राइट हैंड साइड में लाइन मेंटेन नहीं हो सकती है क्योंकि वो कहां पर वर्ड एंड होता है, बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज मेक अ प्रॉपर यहाँ पर मार्जिन जहां से आप स्टार्ट कर लो. ये नहीं कि कहीं पर अंदर से करो कहीं पर बाहर से करो, ऑलवेज मेक अ मार्जिन. ठीक है, जैसे yes, ये है. yes, ठीक sir. है, ऑलवेज मार्जिन बना के उस मार्जिन स्टार्ट करो, सो दैट योर कॉपी लुक्स नीट. एग्जामिनर
मार्क्स कब देता है? एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स जब आप उसको ईज पे रखते हो। जितना एग्जामिनर ईज पे होगा आपकी कॉपीज इवेल्युएट करते वक्त, उतने ही आपको ज्यादा मार्क्स ग्रांट होंगे आपकी कॉपीज के अंदर। तो जस्ट मेक श्योर कि बिल्कुल। एग्जामिनर को कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही है आपकी कॉपीज इवेल्युएट करने की। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। आपने क्या मेंशन किया? फैक्ट्स ऑफ द केस, दिस वाइस सेंड्स द लीगल नोटिस, एक्स रिप्लाइज दैट no notice is unenforceable. Issue land in agreement portions to the 10 acres. Agreement was for 9 acres and 10 acres. Is this agreement enforceable? This is the correct way of starting the question where you mention the facts of the case and where you mention the issues. ठीक है, यही एक प्रॉपर है। नेवर स्टार्ट विद व्हाट वाज द लॉ एंड वो, हमेशा फैक्ट्स बताओ फिर इश्यूज बताओ फिर उसको लॉ पे डील करो। सो हियर यू हैव वेंट राइट। ठीक है, नाउ लेट्स सी इन द लॉ। तो Section 10 of the Specific Relief Act states that a contract for specific performance is enforceable unless it falls within parameters of Section 11 Clause 2, Section 14 and Section 16. ठीक है, why has Malist Institute C sued Section 10 of the Specific Relief Act, which after amendment of mandatory for the courts to enforce the suit for specific performance. Section 26 of Specific Relief Act states that about rectification of the now. Here you have marked the incorrect सेक्शन मेंशनड। रेक्टिफिकेशन इज सेक्शन 26। ठीक है, तो जहां पर भी आप सेक्शन नंबर रॉन्ग कोट करते हो फॉर रेक्टिफिकेशन, बाद में 27 ऑनवर्ड्स रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है आपका। ठीक है, तो हम्म, इफ यू आर अनएवर ऑफ द सेक्शन तो आप रेंज मेंशन करो वहां पर कि यहाँ पर सेक्शन, या फिर अगर आपको पार्ट याद है उसका किस पार्ट के अंदर, पार्ट 3 और 4, अगर आपको पार्ट याद है तो पार्ट मेंशन करो। सेक्शंस नंबर याद नहीं है तो आप मेंशन कर दो उसकी रेंज 26 to 35, इन सब चीजों की बात करते हो तो आप रेंज मेंशन कर दो। ठीक है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे यहाँ पर। जैसे ही आपने 27 लिखा, एग्जामिनर गेट टू नो कि यू आर नॉट अवेयर अबाउट द करेक्ट सेक्शन नंबर। ठीक है, और दिस स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट द रेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट स्टेट्स दैट द कोर्ट में एडजज court may adjust the rectification of the instrument in the following circumstances: the instrument is voidable or the face of it unlawful in the defendant but by the mere plaintiff. It has to be shown court instrument to rectified in which ये ठीक है, आपने 3 पॉइंट्स मेंशन किए। नाउ इन दिस पर्टिकुलर यू वी हैव ओनली मेंशन दिस पर्टिकुलर रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर अदर पार्ट्स ऑफ द सेक्शंस वर आल्सो इंपॉर्टेंट, जहां आप रेमेडीज बताओ, क्योंकि आपने ये मेंशन कर दिया फिर लास्ट में आपने लिख दिया as per the facts of the case there is only an error related to the description of the khasra number, that is only a numerical mistake which is an error on the face of the record. The court may after correcting the error correct the enforceable, and that's it. आपने यहाँ पर इस चीज को खत्म कर दिया। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा था डिसाइड द रेमेडीज अवेलेबल टू वाई इफ द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर उसके पास 26 की रेमेडी थी। ठीक है, जो अपने मेंशन की रेक्टिफिकेशन वाली। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल। एडिशनली में इन एडिशन टू दिस आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी थी। यू हैव टू मेंशन सेक्शन 21। ठीक है, जो इसे डील करता है। यू हैव टू मेंशन सेक्शन 2 ऑल्सो। यू हैव टू मेंशन सेक्शन 38 ऑफ SRA, सो दैट जब तक आपका एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं होता वो किसी और को प्रॉपर्टी ना बेच पाए। राइट, तो दिस इज ऑल्सो रेमेडी विच इज अवेलेबल टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो वेन एवर यू आंसर एनी क्वेश्चन इन द लास्ट पैरा, अगर आपसे पूछे रेमेडी तो इन द लास्ट पैरा मेंशन ऑल द रेमेडीज विच आर अवेलेबल। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप मान लो 4 रेमेडीज है, इफ यू आंसर और गिव ओनली 2 रेमेडीज तो एग्जामिनर विल नॉट गिव यू फुल मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव गॉट 18 मार्क्स। ठीक है, in total. In the first part, if you have got, yeah, somewhere around, yeah, this was the question. तो समवेयर अराउंड 6-7 मार्क्स। तो यहां पर अपन इस चीज को इंप्रूव करेंगे तो वी कैन गेट गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यशिका? Avinash, with the intention to sell his laptop, keeps his status on WhatsApp on the following narrative: refurbished 2 years old HP Pro notebook available for sale at 20,000 rupees. Anyone desires to purchase same can call me and confirm the acceptance by depositing rupees 2,000 in my Google Pay.
My WhatsApp number is this and Google Pay number is this. Offer is valid for next 2 days. क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि क्या ऑफर दिया है और कैसे एक्सेप्टेंस करनी है. इट इज वेरी क्लियर विद दिस एस्पेक्ट. नाउ लेट्स कम टू द ए पॉइंट. Relying on the above status, Satyajit called Avinash and expressed his desire to purchase the same at a given price and promised to deposit 2000 in Google Pay. However, he does not deposit the same. उसने deposit नहीं किया. Second aspect, watching the status, Nishkan only replies with a thumb emoji to WhatsApp and Avinash and deposit 1000 rupees in Avinash account through Google Pay. Share the screenshot. Now, क्वेश्चन के क्या एस्पेक्ट है? इवैल्यूएट द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस गिवन बाय सत्यजीत, ठीक है, एंड वेदर thumbs up emoji given in reply to the status of Avinash be considered as valid acceptance. If so, decide the validity of the acceptance given by Nishikant. So we have to address these both aspects in your question. Now let's see what you have given. So here you have mentioned the facts. Facts is there is an offer to sell the laptop on the status of 2000 status for 2000, calls Avinash to purchase and deposit 2000, but he fails to do so, deposit 100. Now in the starting also आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया 1000 रुपीज डिपॉजिट किए इन शेयर्स, ठीक है. अब यहाँ पर दो लोग थे, ठीक है. फिर अब यहाँ पर आपने क्या दिया? There is offer to sell laptop in status 2000. Satyajit calls Avinash to purchase the same and promise to deposit 2000, but he fails to deposit so, but deposit 1000 in the shares institute. अब 1000 रुपीज डिपॉजिट किसने की है? 1000 रुपीज डिपॉजिट इसने की है, निशिकांत ने. दीज आर टू ए एंड बी पार्ट, दीज आर नॉट द सेम थिंग, ठीक है. वो दो लोगों की बात करें, दो लोगों ने उसको रिप्लाई बैक किया. अब आपने जैसे ही ऊपर इस दोनों को मर्ज कर दिया, ये यहाँ पर फैक्ट्स गलत हो गए, ठीक है. अब आपके अगर फैक्ट्स ही गलत है तो उसका इशू आप गलत बनाओगे, इशू गलत बनाओगे तो आप उसका रीजनिंग गलत दोगे वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है. इशू क्या बनाया? इज देयर अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट. ये इशू ठीक है, कंक्लूडिंग, लेकिन यहां क्या बनना चाहिए? बिटवीन अविनाश एंड सत्य, उसके अविनाश के बीच में एंड सत्यजीत, एंड अविनाश एंड निशिकांत, ठीक है. ये दोनों चीज आप मेंशन करोगे कि दोनों चीज ही कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट में आती है, नहीं आती. नाउ द लॉ पॉइंट. Law point states section 2(8) defines offer, that is person signifies to other his willingness to do or abstain from doing something with a view to extend it. ठीक है, ये ठीक है. Section 2B, when a person, ठीक है, हो गया. Acceptance for a valid contract, essential section 10 must be fulfilled, ठीक है, accepted for a lawful concession, lawful object is not valid. Now coming to this aspect, यहां पर आपने सेक्शन 10 मेंशन कर दिया, सेक्शन 2 मेंशन कर दिया. वेयर इज सेक्शन 7? एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए? सेक्शन 7 acceptance must be absolute and unqualified. That was the most important section in this particular aspect. ठीक है, यहां पर आपने बताया ऑफर क्या होता है, गुड टू गो. टू भी बताया आपने, आपका एक्सेप्टेंस क्या होता है. यहां बताया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एक्सेप्टेंस चाहिए, क्योंकि पूरा इश्यू जो है वो एक्सेप्टेंस के ऊपर है इसमें, कि एक्सेप्टेंस हुई या नहीं हुई. ऑफर दोनों ने दिया, एक्सेप्ट दोनों ने किया, वो बोल रहे हैं, बट वेदर द एक्सेप्टेंस वाज प्रॉपर और नॉट, दैट इज द मेन इशू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो फॉर दिस वी हैव टू डील विद सेक्शन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन offer and invitation to offer. Offer is made to 5 particular persons, whereas invitation to offer public at large, like ये ठीक है. Now Yashika's understand, whenever examiner give you these types of question, problem based question, that person is trying to see कि आपने उसका आंसर कहाँ लिखा है. फॉर द लाइक दिस पेज वी हैव नॉट डेल्ट विद कंप्लीट एस्पेक्ट, लॉ एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं. इन दिस पेज ऑल्सो टिल हेयर वी आर ओनली डीलिंग की इन्विटेशन टू ऑफर क्या आता है एंड व्हाट इज द ऑफर. सेक्शन 8 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मिंग ऑफ द कंडीशन गिवन इन द ऑफर. फिर कार्य केस लॉस तक आ गए, बट वी हैव नॉट डेल्ट विद द कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया है. डू नॉट डू दिस थिंग बिकॉज एग्जामिनर वुड बी फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि यार जो चीज पूछी गई है वो तो डील हो ही नहीं रही है और लॉ पॉइंट डील होता जाए. आपने नीचे किया होगा डेफिनेटली, बट यहां तक डू नॉट निगेट द फैक्ट कि आपको केस लॉज एंड एवरीथिंग शुड नॉट बी अ स्टार्टिंग ऑफ द आंसर. इट शुड बी
समथिंग विच शुड सब्सटेंशिएट योर आंसर। सब्सटेंशिएट कब करोगे, पहले आप बताओगे कि वेदर दिस इज द प्रॉपर एक्सेप्टेंस और नॉट, अगर है तो उसका आंसर, नहीं है तो उसका आंसर, देन यू विल मेंशन द केस लॉ टू सब्सटेंशिएट योर आंसर। ठीक है। Here you mentioned Carlyle was Carbolic Small Company. The defendant made an advertisement inviting people to have the ball and whoever catches the will 800. ठीक है, plaintiff Sir, using. I want to ask one question. Yes, yes. Tell me. Uh, then we write the facts, then issue and the law point we deal with. Then and there only not we write the case law only, or do we have to write in appreciation of facts? मतलब last में जब हम analysis करते हैं तब. Basically, when you get these types of question, Yashika, तो when you deal with the law aspect, just mention the section number, किस section से वो pertain करता है, then आपके particular problem पे वो section apply कैसे होता है, and then after this come to the case law. केस लॉ शुड बी आफ्टर योर एप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्स। जब तक आप फैक्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करोगे, लॉ पॉइंट सब्सटेंशिएट कैसे करोगे? पहले आप लॉ को ही बताओगे, वो केस लॉस को ही बताओगे, आप पहले अपने फैक्ट्स बताओगे कि वो से इससे रिलेट होता है, एंड दिस इज द केस लॉ विच सब्सटेंशिएट्स माय आंसर। दिस इज द प्रॉपर क्रोनोलॉजी विच यू हैव टू अडॉप्ट। नाउ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल कंपनी कोर्ट हेल्थ, आपने यहां तक पूरा अभी तक अपने डील किया ही नहीं है फॉर द 2 पेजेस कि जो एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछ रहा था। ठीक है। Now here, acceptance as per section 7 of the contract must be absolute and unqualified now. जो ये मेन पार्ट था जो अपन ऊपर देखा नहीं डील किया, आपने इतनी नीचे डील किया है, तो डील दिस इन द इनिशियल पार्ट ओनली। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, ठीक है, वो आपको ऊपर डील करना है सबसे पहले, क्योंकि एग्जामिनर वो ढूंढ रहा है। एग्जामिनर एग्जामिनर आपके ऊपर मार्क्स काट चुका है, इसलिए क्या है, इसने डील ही नहीं किया, और आप नीचे उसको डील कर दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो प्रॉपर सीक्वेंसिंग, प्रॉपर क्रोनोलॉजी ऑफ अटेम्प्टिंग द आंसर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ यू आर कमिंग टू एनालिसिस। इतना बड़ा लॉ पॉइंट नहीं होना चाहिए। लॉ पॉइंट मैक्सिमम हाफ पेज, उससे ज्यादा डील मत करो, क्योंकि इसमें एक पेज के अंदर इन सिंगल पेज आप फैक्ट्स भी डील करो, इश्यूज भी डील करो, एंड लॉ भी डील करो। 1 पेज। नेक्स्ट पेज से अपने सबसे फैक्ट्स को एनालाइज करने पे आ जाओ जो क्वेश्चन मांग रहा है। ठीक है, उससे ज्यादा बड़ा मत करो। नाउ कम टू द दिस पॉइंट एनालिसिस। As per the facts of the case, Satyajit, according to the status on WhatsApp, calls Avinash to buy laptop. However, he did not pay the amount. Satyajit has not fully performed the condition mentioned in the offer, which does not arise. No control. Whereas Nishikant replies with thumb emoji and deposit 1,000 in his account. So, validity of acceptance given by Satyajit has not been in the formation of the contract as he failed to perform the condition as per section 8, hence no contract. Whereas show of thumb Avinash and payment of 1,000, there is a partial acceptance of the offer as per payment to where he paid only. आपने यहाँ पर एक तो इसकी abrupt ending paid only 100, no conclusion nothing। ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपको बताना है जैसे ही उसने पार्शियल एक्सेप्टेंस किया, इट इज नो एक्सेप्टेंस, इट इज काउंटर ऑफर। Yes. वो काउंटर ऑफर में चला गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या जानना चाहता है, क्या एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस नहीं है, दोनों ही केस में एक्सेप्टेंस नहीं है, और नहीं है तो फिर क्या चीज है। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेंस देन व्हाट। तो यहाँ पर अपन मेंशन है इट इज काउंटर ऑफर, और यहाँ पर नहीं है एक्सेप्टेंस। सेकेंड थिंग, ये जो आपने यहाँ पर मेंशन किया अकॉर्डिंग कंडीशंस मेंशन सेक्शन 8, वो सेक्शन 7 आना चाहिए यहाँ पर, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है। Yes. तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, whenever you mention these types of question, always try to underline like difference between, difference हमेशा हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। ठीक है। एंड whenever you present a difference, the best manner to present a difference is in a tabular form, basis, invitation to offer and offer। ठीक है। दिस इज द बेस्ट मैनर टू प्रेजेंट योर डिफरेंस, क्योंकि यहां पर वो पढ़ते हुए चला गया, उसको समझ में नहीं आया कि डिफरेंस आपने क्या प्रेजेंट किया। बट वेन एवर यू प्रेजेंट 1 2 इन दिस पर्टिकुलर मैनर, एग्जामिनर विल गो थ्रू द सेम, कि दैट पर्सन नोज कि यहाँ पर इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, ऑफर क्या होता है, इन पर्सन नोज कि हाँ
इस केस में इनविटेशन टू ऑफर उसने दिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन की, अब यहाँ पर आपने एब्रप्ट एंडिंग कर दी इसकी, ठीक है, कंक्लूजन आपने दिया ही नहीं इसका। अब आपने ये पेज छोड़ा कंक्लूजन के लिए, So, ठीक है, no, sir, because I was running short of time. Time was running, so that's why I left and ठीक है, thought of doing it बट at the last moment. गॉट इट, बट इफ इवन इन दैट केस, ठीक है, कभी भी अगर आपको लगता है कि आपने अपना आंसर पूरा कर दिया है, ठीक है, नेक्स्ट पेज को एम्प्टी मत छोड़ा करो, ठीक है, यहीं पर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया करो। क्यों? द मोमेंट यू लीव द पेज एम्प्टी, एग्जामिनर के दिमाग में क्या जाता है कि दैट पर्सन वांट्स टू राइट समथिंग जो वो नहीं लिख पाया, ठीक है। इट मीन्स कि वो वहीं पर आपको, अगर आपको 10 नंबर क्वेश्चन तो वो कहेगा यार जो लिखने वाला था उसके तो 2-3 नंबर तो पहले से हटा लो, अब 7 में से मार्किंग होगी इंस्टेड ऑफ 10, क्योंकि आप जो लिखने वाले थे आप लिखे नहीं, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन विद द प्रॉपर एंडिंग, चाहे वो 2 ही लाइन की एंडिंग दो, बट गिव अ प्रॉपर एंडिंग टू इट, ठीक है। Okay, sir. ऑलवेज इंश्योर कि आप प्रॉपर, लाइक इफ यू गो विद दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज देयर, इट वाज you must, as you were the premium plus user of adsorb law, so you must have solved the adsorb law means blueprint and the simplified notes, ठीक है। This very first question was directly from the mains blueprint, subject specifically reflect page numbers 12, 13, 14, which is already available to all the users. Second question, ये वाला जो है वो एचएस मेंस ब्लूप्रिंट में अगेन पेज नंबर 20 पे दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन, लेट्स गो विद थर्ड क्वेश्चन एज वेल। Possession is the ninth point, 10th point of ownership is one of the classic jurisprudential principles of property law. This classic principle is found in a greater extent reflected under section 6 of the SRA. Dealing with a suit of person dispossessed of immovable property, elucidate difference between section 5 and 6 of spec. Now इसमें देखो, इसमें कितने पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन है। पहले उसने पोजेशन का पॉइंट पूछा कि पोजेशन इज द 9/10 ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ, ठीक है, ये जूरिस्प्रूडेंस है। पहले अपने को इसको एक्सप्लेन करना है अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल, ठीक है। सेकंड, सेक्शन 6 को एक्सप्लेन करना है जो बोलता है सूट फॉर डिस्पोजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। Third, that examiner wants to ask is differentiate between section 5 and section 6 of specific defect. There are 3 parts of this particular question. Now let's see. And this was also from the adsorb law means blueprint, which we have already solved. Now this is your copy. In your copy, you have started with possession is the 9 point of the law, is one of the classical jurisprudence principle of law. ये चीज ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है, आपने यहां पर रीराइट कर दी। इंस्टेड ऑफ रीराइटिंग एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल, आप इसके सीधा सेक्शन 6 पे आ गए, ठीक है। एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल, क्योंकि वो प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है, उसका प्रिंसिपल वहां पर देने का ये नहीं कि आप उसको रीराइट करोगे। दैट पर्सन वांट्स कि आप उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड पोजीशन एंड व्हाई इट इज कंसीडर्ड 9/10 ऑफ द क्लासिकल jurisprudence principle of property law. Also, if you remember कि ये पॉलिसी, ये जो प्रिंसिपल है किसने दिया था, दैट इज एन एड ऑन टू योर आंसर कि दिस वाज द प्रिंसिपल वाज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, एंड ये इसका मतलब है। सो दिस मेक्स Yes, इट। sir. Now, Section 6 of the Specs Relief Act deals with the concept of recovery of specific immovable property by a person who has been dispossessed. Section 6 of the Act is unique provision in the kind of summary remedy which is available to the plaintiff dispossessed of the defendant. Section 6 states that any person who has been dispossessed of immovable property without his consent and without following due process of law may file institute a suit or recovery of possession of the property. However, the suit must be filed within a period of 6 months. The suit cannot be filed against the government. Now, try to mention these in pointers. सेक्शन 6 जब पूछा गया है ना, तो इसमें 3 पॉइंटर्स है जो इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो यू हैव कवर्ड द पॉइंटर्स इन दिस ओनली, बट इफ यू प्रेजेंट इन अ पॉइंटर्स फॉर्मेट योर आंसर, तो एग्जाम विल सी अच्छा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ही और शी विल गो डाउन कि हाँ नीचे का देखते हैं। जितना आप पॉइंटर्स फॉर्मेट में अपना आंसर प्रेजेंट करोगे, इट विल लुक ब्यूटीफुल। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम में से कि 3 पॉइंट से तीनों पॉइंट उसने डील कर लिए। नाउ लेट्स गो अहेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट Yes, sir. to discourage citizens from taking law into their own hands and without following the due process of law.
In Eastern Hotel Limited versus Syndicate Bank, the courts held that the remedy of Section 6 title is not required to be proved. It is only required to prove only two essential: person dispossessed were in possession of the property and person has been dispossessed unlawfully. Any person or person from which one in possession initiated will say 6 months. In Mac Chatterjee court has even the landlord has to take recourse of the landlord has to take recourse evict a trans tenant who is in possession even after expiry of the term of tenancy. इन अरुणा गौतम वैसे अलका ये ठीक है आफ्टर ठीक है डिफरेंस नाउ ये वाले जो आपने 3-4 केस लॉस डील किए ना, ठीक है, यहाँ डील करते हुए जो अपना प्रिंसिपल था, डू नॉट फॉरगेट कि वो प्रिंसिपल को आपको सब्सटेंशिएट करते हुए चलना है, क्योंकि वो यही चाहता है कि हाउ सेक्शन 6 इज लिंक्ड with this. ठीक है, now let's go below. So here you have mentioned the difference between section 5 and section 6. Section 5 again, if you have gone through simplified notes, Yashika, you must have analyzed whenever we provide you example of simplified notes of any subject, be it BNS, BNSS, CRPC, IPC, CPC, Constitution, जिस भी subject देते हैं, whenever we provide you the difference, it is always in the tabular format. Tabular format is the best manner to present, and we follow this particular pattern because so that the students also follow the same pattern. Because after reviewing around hundreds of RTI copies, we have analyzed कि जिस बच्चे ने इसको tabular form में लिखा है, that person have got more marks than the student who have not mentioned in the tabular format. पहला कॉलम बेसिस का होना चाहिए, दूसरा उसका फर्स्ट पॉइंट, तीसरा थर्ड कॉलम और सेकंड पॉइंट. ये कॉलम्स इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस तरीके से मेंशन करोगे यू विल गेट मोर मार्क्स. देखो मीन्स में जो खेल है ना वो 15-20 मार्क्स का नहीं होता, ठीक है. मीन्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू गेन इवन अ हाफ मार्क इन अ मीन्स, क्योंकि अगर एचजीएस के अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स ईच, एंड हर क्वेश्चन के अराउंड 3 to 4 आपके सब पार्ट्स होते हैं. फॉर लाइक फॉर्मुलाइजेशन हम 3 ले लेते हैं, तो 5 क्वेश्चंस इंटू 3 15 क्वेश्चंस बनते हैं. अगर आपने हर क्वेश्चन में जस्ट अ सिंगल मार्क एक्स्ट्रा गेन कर लिया बाय इंप्रूविंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स, कंटेंट पे हम इंप्रूव करेंगे, दैट इज समथिंग एल्स. बट अगर ओनली इन Yes. चीज पे हमने एक मार्क उसको ले लिया, तो बाय द एंड ऑफ द डे हम 15-20 मार्क्स एक्स्ट्रा हमें इन्हीं चीजों के मिल गए जो हमने लूज नहीं किए by committing these errors. ठीक है, so these are certain things which is very much important. Now यहाँ पर आपने क्या डील किया, सेक्शन 5 states that the person who may institute a suit without a recovery of possession, immediate possession, the manner provided civil procedure, 2 types of remedies available. Section 5, person who is the owner of the property and the settled possession. ठीक है, 64-65 with the knowledge. Section 6, any person including a tenant trespasser file a suit for. Now देखो ये आप जस्ट ट्राई टू रीड योर ओन आंसर एंड यू विल फाइंड कि सब चीजें बहुत हैपजार लग रही है, ठीक है. ये डील जो इस मैनर में हो रहा है, अगर लाइक ये मेथड आप नहीं यूज करते हो ना, इफ यू यूज दिस मेथड ऑलो, देन ऑल्सो पॉइंटर्स में करो. फर्स्ट पॉइंट जब आपने सेक्शन 5 को सेक्शन 6 का कंपेरिजन बताया, फिर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का कंपेरिजन बताया, थर्ड पॉइंट सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का कंपेरिजन बताया, ठीक है. उससे एग्जामिनर के दिमाग में अब यहाँ पर पूरा पैराग्राफ में एग्जामिनर पढ़ भी लिया, आपने डिफरेंसेस बता भी दिए, बट यू विल नॉट फेच मार्क्स. नाउ इन सेक्शन 5 द लिमिटेशन period of recover the immediate property is 12 years, where in section 6 the period to institute a suit is only 6 months, otherwise the suit is barred by limitation. ठीक है, ये 12 years आया किस आर्टिकल से आया, बैक में शेड्यूल दे रखे, शेड्यूल्स के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आपने मेंशन किया, अगेन यहाँ पर भी मेंशन करो, इफ यू मेंशन 12 इयर्स थिंग, आपको मेंशन करना है कि वो कहां से आया. नेक्स्ट इज कंक्लूजन अगेन में से. कंक्लूजन कैसे होना चाहिए यशिका, कंक्लूजन इज ऑलवेज ऑन द बेस्ड कि आपने यहाँ पर क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या थी. जो क्वेश्चन की डिमांड है, जैसे यहाँ पर मेन प्रिंसिपल था पोजेशन इज 9/10 पॉइंट ऑफ लॉ, conclude your answer substantiating this principle.
कि this was the principle in section 6 of the Special Act, totally aligned with this particular principle because it states that even a trespasser has a right over the property and he cannot be illegally dispossessed from the property. आपको उस प्रिंसिपल को अपने लॉ के साथ रिलेट करना है क्योंकि एग्जामिनर को पूरा ही प्रिंसिपल ही डील करना था. ठीक है. सो दीज आर द मैनर. नाउ like let's I will just tell you because you always have been a premium plus user, so I want to tell you before proceeding to another question ki how you can improvise. First of all, you already have Adsorbler blueprints and this was the main analysis document. First question was directly from the blueprint. Second question, iske three no points, all the three sub questions were directly from the blueprints. Next question, question number 2, for Canna Civil Court, you can see all the sources of the blueprints are being mentioned in your questions along with this. तो सारे क्वेश्चन जब ब्लूप्रिंट से आता है तो एग्जाम लाइक आई डू नॉट बिलीव कि एड्सॉर्बियंस के पास तो कोई भी एक्सक्यूज है कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया हमें पता नहीं था, because the topics were well before time provided to all the adsorbians on the platform कि ये blueprint से ये important topics है, just go through these important topics. एंड सम ऑफ द टॉपिक जो ब्लूप्रिंट्स में नहीं थे वो हमारे मेन सिंप्लीफाइड नोट्स में भी कवर्ड थे. वी हैव रिसेंटली लॉन्च द मेन सिंप्लीफाइड नोट्स एज वेल. So most of the important main topics are covered in the main simplified notes and just go to the main simplified notes. That is, I personally believe कि वो बहुत properly बनाए गए हैं. ठीक है. And all the important topics which are part of the mains examination are covered in those particular main simplified notes. Now, how to improvise way before the examination? You already have written lot of means copies and send it for evaluation to our team. Okay? And you get your copies back, evaluate copies back. So the best manner is whenever you get your evaluate copies back after evaluation, just go to the and go through the entire copy कि आपको उस कॉपी में क्या क्या रिमार्क्स मिले हैं with each and every question. ठीक है. ये क्वेश्चन था यहाँ पर this was something which you have written and उसके बगल में आपको remarks मिले. तो how you can improve? I will just share one valid copy so that we can get to know. Yeah, let's go through this one. So अगर देखो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन में मार्क्स रिमार्क्स क्या क्या है यहाँ पर. रूल ऑफ कन्वीनियंस मैक्सिम हैज टू मेंशन दिस पर्सन इज रिटर्न फर्स्ट इंस्टेंस इन कोर्ट वेयर इट शुड बी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. तो जो जो आपको रिमार्क्स मिलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट योर रिमार्क्स इन योर आंसर्स. सेम क्वेश्चन को आप दोबारा अटेम्प्ट करो. ठीक है. इनकॉर्पोरेट की ये रिमार्क्स मिलते हैं, अब मैं इसको एक प्रॉपर आंसर बना लेती हूँ. दैट वुड बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वो एक दोबारा अटेम्प्ट करो. ऑल्सो इंश्योर कि कुछ कुछ रिमार्क्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल बार सेम मिस्टेक्स करते रहते हैं. फर्स्ट में कि हमने सेम रिमार्क्स दिए, इन द सेकंड कॉपी व्हिच वी रिसीव दे गेट द सेम रिमार्क्स अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट फ्लो का या फिर क्रोनोलॉजी का. So these are something whenever you get remarks in the very is do not commit the same mistakes in the next paper which you attempt with us. ठीक है. So if you write around 10 papers with Adsorb law, your entire mains exam copies like mains exam के आंसर राइटिंग आप प्रो हो जाओगे उस चीज के अंदर. ठीक है. दूसरी चीज which in your copy which I found out कि in civil law 2 you have got 76 फर्स्ट पेज पे करते हैं इसको. इन सिविल लॉ 2 इट वाज 76 मार्क्स. ठीक है. इन क्रिमिनल लॉ इट वाज 96, इंग्लिश इट वाज 97.5 एंड इन हिंदी 54.5. ठीक है. अब कहाँ का इंप्रूव करना है? इंग्लिश में आपको बहुत इंप्रूव करना है बिकॉज इंग्लिश इज वन सब सब्जेक्ट जहां पर दिस लॉट ऑफ लाइक वी हैव अ कॉपी फॉर स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड इन इंग्लिश 127. ठीक है. यहाँ पर इतने आए हैं. सम स्टूडेंट्स हैव गॉट इवन 150 प्लस. ठीक है. तो इंग्लिश इज एन लैंग्वेज, हिंदी बोथ आर द गेम चेंजर्स फॉर यू. यहाँ पर देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. सेकंड थिंग, यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आप बहुत एज ले सकते हो एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स. लॉ में ठीक है आपको यहाँ पर 12 मिले, किसी को यहाँ 14 मिले होंगे, किसी को यहाँ पर 11 मिले होंगे, किसी को 10 मिले होंगे. ठीक है. बट इन द यहाँ पर आपको 97.5 मिले तो किसी को 150 प्लस भी मिले हैं और किसी को 50 भी मिले हैं. ठीक है. तो इंग्लिश इज वन सच एरिया वेयर यू कैन
take a substantial edge as compared to your competitors. So do not forget these particular two things, English and Hindi. ठीक है, यहाँ पर सिविल लॉ 1 सिविल लॉ 2 है. एन एंटायर एज अ एड्जॉर्बियन आई वुड सजेस्ट यू go through the complete blueprints first of all. Second, go to the main simplified notes. ठीक है, these two things अगर आपने कर ली है. Third thing is answer, like writing down the epic mains test series and sending it for evaluation. That is obviously should be there for any candidate who is writing the mains examination, who is preparing for judiciary. Means answer writing along with the evaluation is one of the important facets of their preparation. So do not negate that particular point. Okay. Now I will just stop sharing my screen, and if you have any doubts, you can ask me about this particular thing. Uh, in yes, thank you so much, sir. Civil law 2 में I cannot rectify कि where I have committed mistakes or why I have got less marks in certain questions. Although I completed my paper on time, but still, in comparison to criminal law, uh, I have scored less marks. In civil law 1, I couldn't complete the paper on time. That was my mistake. I agree, but in civil law 2, I cannot rectify. There I went wrong actually. In one or two question, if possible. देखो If you यशिका, can, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट की जहां पर बात आती है ना, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे बनेगा? व्हेन यू अटेम्प्ट द पेपर्स बिफोर एग्जाम इटसेल्फ. ठीक है, आप जब पेपर्स अटेम्प्ट करते हो, व्हेन यू अटेम्प्ट द एपिक मेंस टेस्ट सीरीज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय एट्सऑफ, ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में हो चाहिए. वी आस्क द यूजर्स टू, प्रीमियम प्लस यूजर्स की, come on Zoom session on the Adobe Study Space and write down the papers there, because वहां पर आपके ऊपर विजिलेंस भी है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप उस 3 घंटे पर 3 घंटे में अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रीमियम प्लस यूजर्स कम देयर एंड राइट द पेपर्स. आपने भी किए, आपने काफी सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए, एंड उसके अंदर डू नॉट नेवर चीट योर सेल्फ. अगर 3 घंटे पेपर है, 3 घंटे में करो, और उसके बाद जस्ट स्टॉप देयर इट सेल्फ. When you write 15-20 papers in this particular manner, after it you will come to a position जहां पर you are not like letting it, कि आपको टाइम मैनेजमेंट में इशू हो रहा है. टाइम मैनेजमेंट का इशू इससे इजीली चला जाता है. सेकेंड थिंग, ब्लूप्रिंट्स इवेल्यूशन. ब्लूप्रिंट्स जब आप सॉल्व करते हो, ठीक है, यू कैन, एज यू नो, यू कैन ऑल्सो गेट योर ब्लूप्रिंट्स इवेल्यूटेड बाय एग्जाम. तो उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अराउंड 80% इन दिस पर्टिकुलर एचजेएस. इफ आई विल टेल यू, in the edges examination, the strike rate was 95% in the edges means examination 2024. So 95% of the questions were there from the adsorb law means blueprints and the simplified notes. Now 95% is a very high number. ये सारी चीजें ओनली यहाँ पर 95% के अंदर कहाँ से आया? जो हमने आपको 20% ऑफ द टॉपिक्स जो आपको प्रोवाइड किए थे, ये पेपर उसमें से आया है. अब आपको पूरी इतनी मेहनत नहीं करनी जितना एवरी अदर एस्पिरेंट हु इज नॉट द यूजर ऑफ एडजॉब जो वो कर रहा है. ठीक है, दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू ऑल द टॉपिक्स व्हिच आर देयर इन द बेरेक्ट एंड गोइंग थ्रू लाइक रीडिंग, रिटेंशन, रिटेनिंग ईच एंड एवरीथिंग. आपको इन 20% ऑफ द टॉपिक्स जो आपके ब्लूप्रिंट्स में दे रखे होते हैं, उनको पहले आपको हाई अचीव करना है, प्रॉपरली उनको सॉल्व करना है, मेक द फ्रेमवर्क्स एंड एवरीथिंग हैज टू बी डन. आफ्टर दिस यू हैव टू फोकस ऑन द अदर टॉपिक्स, बिकॉज अगर आपने इसको कर लिया तो आपका गेम यहीं पर सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक एनीथिंग इज नीडेड आफ्टर दिस. क्योंकि लाइक टेल मी, आप ही मेरे को बताओ कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज बेटर, एडजॉब का जो कंप्लायंस है, मैकेनिज्म है, ठीक है, लाइक वाइल वी फंक्शन, एंड सेकेंड इज सेल्फ कंप्लायंस. व्हाट डू यू थिंक कि बेटर, जिस तरीके से आप अटेम्प्ट करते हो? Obviously, someone who is going through your work, someone who is evaluating copies, वो आपको एक प्रॉपर आपको सजेस्ट कर पाएगा where you committing the mistakes, where you are like making the errors, and that person would be in a position to tell you कि Yashika, this is the manner in which you can improvise your answer writing skills or your Q bank if you're solving Q bank. Prelims वहां पर explanations properly दे रखे हैं, तो that is sort out. वहां पर आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक्सप्लेनेशंस पढ़े, एवरीथिंग इज डन देन इन देयर इटसेल्फ, इट इज सॉर्ट आउट.
यहाँ पर आपको मेंस में एक असिस्टेंस मिलती है विद अ मेंटोर हु इवैल्यूएट कॉपीज, हु गिव यू सजेशंस, हु गिव रिमार्क्स, एंड यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दोस रिमार्क्स. You get personalized mentorships in which you can ask कि अगर आप कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगर टाइम शेड्यूल मैनेज नहीं कर पा रहे, यू कैन आस्क कि सर हाउ वी कैन improve our टाइम मैनेजमेंट. प्रीलिम्स में भी इशू होता है बच्चों को, मेंस में भी इशू होता है. ऐसा नहीं मेंस में इशू होता है प्रीलिम्स में नहीं होता, दोनों जगह पे इशू होता है. तो हमें दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना है. तीसरी थिंग जहां पर आपने मुझे पूछी कि सर कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर मुझे समझ में नहीं आया कि वाई माई मार्क्स आर डिटेक्टेड इन सिविल और टू. ठीक है. When examiner try to evaluate a copy, they are the judges. They try to find out whatever, like all the sections which could be the part of that particular question. ठीक है. Like we have discussed the question number 1. वहां पर 3 से 4 सेक्शन है जो मेंशन होने थे. ठीक है. Students, most of the students must have mentioned section 26, section 10 and all, only these 2 sections. But examiner बाकी चीजों को भी ढूंढ रहा है वहां पर. ठीक है. And if the examiner not find those particular sections, that person would deduct you marks. ये चीज है. ठीक है. नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू यशिका कि आपको क्या लगता है कि जो एडजॉब का मेंस इकोसिस्टम है, मेंस का इकोसिस्टम एंड एवरीथिंग, हाउ इज इट, एंड टेल अस योर एक्सपीरियंस अबाउट इट. So it is very good. I attempted all the 20 papers, and when I attempted the real paper, the mains exam, I matlab, got most of the questions from there. Yes, although in civil law paper I couldn't manage my time. That that is where I was lacking the most. But in civil law too, criminal law paper, and even English and even Hindi में that वो कविता वाला जो आता है, that was also there in that paper means exam, and that was like मेरे को आता है, and I just solved it by taking care of my time, uh, which I lacked in civil law one paper. I took care of that in the later exam. Uh, and I recommend also to others also कि yes, do solve it on time and before only. क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट में सॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है कि वो ठीक है हो जाता है बट वो प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती. दैट. एग्जैक्टली. एंड ऑल्दो like HJS में आपका हार्ड लगता, but definitely you will get into the next judicial service examination of the HJS of or of any other examination, definitely for sure, because there are very less students with adsorb who are able to write the complete papers. 20 papers, writing 20 papers is like a, like I would say troublesome thing, like very takes a very toll. So if you have written enough, just keep on writing the papers, just keep on evaluating the same, and you will definitely get some of the other states, and we will be happy to see your name in the list next time. Yes, sir. Yes. Thanks a lot, Yashika, for joining the Thank you, session. sir. Thank you, sir. Bye Thank bye. you, ma'am. Thank you. Have a nice day.